and unique social services held by sanitizing to prevent corona infection at the Kalighat police station, Kalighat Bazar, Chetla Logit area, Behla police station, Sarsuna police station by Hindu Muslim Ekya Manch on 10th July 2020. The chairman and eminent social activist Dr. Lokesh Mukherjee and state president of the organization Mr. Kausik Maji was also present to grace the program. নাম কালীচরণ না আমাদের এই এলাকায় আপাতত যা পরিস্থিতি তাতে খুব একটা খারাপ নেই। আমাদের বাজারে একটা হয়েছিল করোনা, সেটা ঠিক হয়ে গেছে, সুস্থ হয়ে গেছে। আর আমাদের থানা থেকে প্রশাসন থেকে প্রচুর সাহায্য করছে, আমাদের মাঝে মাঝেই স্যানিটাইজার তুলে দিয়ে সপ্তাহে একবার দুবার করে। থানা প্রচণ্ড ভিড় কিন্তু আমাদের থানা, আমাদের কালীঘাট থানা সব কিছুই করে আসে দেখছি, এবং তারা প্রচণ্ড ভালো রকমভাবে কাজ করছে সব বিষয়ে। এই মুহূর্তে আমরা কালীঘাটে রয়েছি, কালীঘাটে স্যানিটাইজিং হচ্ছে, সেই বিষয়ে এখানে আমরা কিছু কথা বলে নিতে চাই এনাদের উদ্দেশ্য ব্যাপারে। স্যার আপনার একটুখানি পরিচয়টা দেবেন ওর নামটা বলুন। নমস্কার, আমাদের এই সংস্থার নাম হচ্ছে হিন্দু মুসলিম ঐক্য মঞ্চ। আমি এই সংগঠনের চেয়ারম্যান, আমার সাথে আমাদের স্টেট প্রেসিডেন্ট আছেন কৌশিক মাঝি। উনি দীর্ঘদিন রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন, এখনও আছেন। বিভিন্ন সমাজমূলক কাজে আমরা জড়িয়ে থাকি। আপনারা জানেন এর আগেও আমাদের কিছু পরিকল্পনা ছিল, যখন আমাদের বন্যার পরে আমাদের দান করা থেকে শুরু করে যে কোনো সামাজিক কাজে আমরা এগিয়ে থাকি। এবং আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যেটা বাংলায় চলছে সেটার জন্য মূল আমাদের এই সংগঠন, সেটা হচ্ছে হিন্দু মুসলিম ঐক্য মঞ্চ। জাতি ধর্ম শেষে আমরা যে কোনো কাজে এগিয়েছি। আর যারা এই হিন্দুর সাথে মুসলিম, যারা এই বিরোধিতা চাইছে এই বাংলায় দাঁড়িয়ে, তাদের আমরা কঠোর বিরোধিতা করি এবং ধিক্কার চাই। আমাদের এই সমাজমূলক কাজ এবং স্যানিটেশন, এই করোনার বিরুদ্ধে এই যে লড়াই করতে হচ্ছে মানুষকে, এই লড়াই করতে গেলে আমাদের এখন স্যানিটেশনকে সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে। তার জন্য আমরা আজকে, এটা আমাদের পার্ট 1, আমরা আজকে কলকাতা জেলা থেকে শুরু করেছি। কালকে থেকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের যে কটা জেলা আছে আমরা পরপর করতে থাকবো এবং মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করব। আমাদের যে আগামী দিন কয়েকদিন ব্যাপী যে লকডাউন পরিস্থিতি ছিল এলাকাতে, খুব পরিস্থিতি মানুষের খুব খারাপ ছিল। আমরা ক্লাব তরফ থেকে এবং আমাদের মাননীয় মহানাগরিক জনাব ফিরহাদ হাকিম মহাশয় আমাদের এই এলাকার জন্য অনেক কিছুই করেছেন। কারণ লকডাউন পরিস্থিতি, যে পরিস্থিতিতে মানুষ না খেতে পেয়ে দিন কাটাচ্ছিল, আমাদের মহানাগরিক এখানটায় এসে বিতরণ করে গেছেন। এবং কিনা আমাদের লঙ্কেশ দা যিনি আছেন, লঙ্কেশ দা আমাদের এই অঞ্চলে অনেক কিছু খাবার বিতরণ করে গেছেন। তাই আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই, লঙ্কেশ দাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমাদের মহানাগরিক জনাব ফিরহাদ হাকিম মহাশয়কেও জানাই, এবং এই এলাকায় সমস্ত মানুষকেও জানাই যে পরিস্থিতি, করোনা পরিস্থিতিতে লড়াই করেছে, তাদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং কিনা আমি ক্লাব তরফ থেকে আগামী দিন গেছিলাম, সুন্দরবনেও গেছিলাম। লঙ্কেশ দা জানে, লঙ্কেশ দা আমার হিন্দু মঞ্চ তরফ থেকে আমি সুন্দরবনে গেছিলাম। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। भारत चीन विवाद, क्या बायकॉट चाइना का नारा धरातल पर संभव है? ऐसे समय में जब चीन की कई वस्तुएं हमारे लिए अपरिहार्य है, तब क्या चाइना बायकॉट का नारा धरातल पर संभव हो सकेगा? यदि संभव भी होगा तो उस पर आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें सालों लग जाएंगे। क्या ऐसे में चीन के साथ वर्तमान तनाव समाप्त हो पाएगा? भारत जैसे भावनात्मक देश में किसी भी नारे को आगे लाना बहुत आसान होता है, और ऐसा उन सभी देशों का आसान हो जाता है जो संवेदनशील होते हैं। ऐसा ही एक नारा बायकॉट चाइना का नारा है। चीन की विस्तारवादी नीतियों और धोखेबाजी के कारण दुनिया के कई देशों में यह ज्वार उठता रहता है, किंतु चीन की रणनीतिक घेराबंदी क्यों नहीं हो पा रही है, इन कारणों पर हमें विचार करना होगा। हम भी कार्यों को कर सकते हैं, लेकिन तकनीकी कार्यों में जितना
लाभ भारतीय कंपनियों की होती है उतनी चीनी नहीं, इसलिए वे प्रतिस्पर्धा में हमसे आगे निकल जाते हैं और किफायती होने के कारण समर्थन पा जाते हैं। हम भाव खोते हुए भी केवल नारा लगाते रह जाते हैं। दिवाली के पटाखों, लड़ियों का बहिष्कार कर क्या हम चीन को घेरने के उद्देश्य में सफल हो सकते हैं? शायद नहीं। ऐसे कई चीनी उत्पाद हैं जो हमारे लिए अनावश्यक हैं, जैसे धार्मिक मूर्तियाँ, लाफिंग बुद्धा, डांसिंग गणेश, बच्चों के खिलौने, नेल कटर, टूथब्रश, फर्नीचर इत्यादि। लेकिन कुछ ऐसी भी चीनी वस्तुएं हैं जो हमारे लिए अपरिहार्य हैं, जैसे दवाइयों का कच्चा माल और इलेक्ट्रॉनिक कल पुर्जे, रासायनिक खाद इत्यादि। आज चीन को घेरने की शासन के स्तर पर ना तो कोई रणनीति है ना ही ऐसा कोई उद्देश्य। केवल राजनीतिक उत्सावे के लिए बस नारे उछाले जाते हैं। स्पर्धा से हम डरते हैं और मोनोपोली का लाभ उठाते हैं, यही हमारी कमी है। भारत और चीन के बीच में घाटे का व्यापार है। लगभग 8600 करोड़ डॉलर का हम चीन से आयात करते हैं और 7030 करोड़ डॉलर का निर्यात करते हैं। लगभग 1500 करोड़ डॉलर का व्यापार घाटा चीन के साथ हमें होता है, क्योंकि चीन ने ऐसे क्षेत्रों में स्पर्धा करने की क्षमता पैदा कर ली है जिनमें आगे बढ़ने का हम प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। स्पर्धा से हम डरते हैं और मोनोपोली का लाभ उठाते हैं, यही हमारी कमी है। अभी अभी जारी हुई गेटवे हाउस रिपोर्ट बताती है भारत के 30 सफल स्टार्टअप में से 18 में चीनियों का निवेश है। 10 करोड़ डॉलर से अधिक का निवेश लेने वाले स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स में चीनी लोगों ने जमकर निवेश किया है और खतरा भी उठाया है। इसी कारण धीरे धीरे दुनिया में उन्होंने व्यावसायिक वरीयता प्राप्त की है। बहुत से देश चीन से नफरत करते हुए भी उनके उत्पादों का पूर्ण बहिष्कार नहीं कर पा रहे हैं। जब ज्यादातर अमेरिकी कंपनियां भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रही थी, तब चीनियों ने टेक स्टार्टअप्स में पैसा लगाया। अलीबाबा, बाइक डांस, टेसेंट जैसी कंपनियां ने 92 भारतीय स्टार्टअप को पैसा दिया है, जिसमें पेटीएम, बाईजूस, ओयो और ओला जैसे यूनिकॉर्न शामिल हैं। देश की कंपनियों के रिकॉर्ड में चीनी निवेश ना दिखाई पड़े, इसके लिए उन्होंने दूसरे देशों के माध्यम से भी निवेश करने की चतुराई की है। अलीबाबा ने पेटीएम में सीधे निवेश न करके अपनी ही सिंगापुर की कंपनी अलीबाबा सिंगापुर होल्डिंग्स के माध्यम से निवेश किया है। फॉर्च्यून कंपनी ने ग्लेन फार्मा में लगभग 110 करोड़ डॉलर, एमजी मोटर्स में 30 करोड़ डॉलर का निवेश किया है। चीनी कंपनियों ने निवेश के क्षेत्र में रिस्क उठाने की क्षमता दिखाई है और वे कामयाब हो गए हैं। शुरुआत में पेटीएम को 3690 करोड़ का घाटा हुआ। इसी तरह फ्लिपकार्ट को 3837 करोड़ का घाटा हुआ, लेकिन चीनी निवेशकों ने पैर पीछे नहीं हटाए और वह भारतीय व्यापार में बहुत हद तक कब्जा करने में सफल हो गए। क्या ऐसे चतुर निवेशक के बिना रणनीति से निपटा जा सकता है? सरकार को ऐसे रोड मैप के साथ सामने आना चाहिए जिसमें भारत में दवा बनाने के लिए प्रयुक्त एपीआई का देश में ही उत्पादन हो सके, रसायन उद्योग को बढ़ावा मिले, पॉलीमर और अन्य रासायनिक प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों का उत्पादित किए जाएं, सरकार इन कंपनियों में रिस्क उठाए और नीतिगत समर्थन दे। सेमीकंडक्टर, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी, चिप और मेमोरी मीडिया के क्षेत्र में हमें उतरना पड़ेगा और प्रतिस्पर्धात्मक जुनून के साथ भी तब कहीं यह घेराबंदी सफल हो सकती है। बहुत से देश चीन से नफरत करते हुए भी उनके उत्पादों का पूर्ण बहिष्कार नहीं कर पा रहे हैं, किंतु क्या वजह है कि हम केवल नारा लगा रहे हैं और वियतनाम सफल होता दिख रहा है। सोचिए कि हम लगभग 800 करोड़ रुपए का केवल अगरबत्ती की काढ़ी का आयात करते हैं। चीन से यह धंधा वियतनाम ने छीन लिया है। चीन ने हमें सिल्क में, गार्लिक में पीछे धकेल दिया है, जबकि हमारा सिल्क सदियों से दुनिया की पसंद रहा है। क्या हमारी प्रशासनिक व्यवस्था भ्रष्टाचार छोड़कर जुनूनी भावना से हमें वापस छीन सकती है? हम भी उसे घेर सकते हैं, पटक सकते हैं, मगर कोरोना की भीषण त्रासदी में भी निजी भंडार भरने वाली मशीनरी के सामने यही बड़ी चुनौती है।
आज जुनून है तो आइए इसका सामना करें, यही सच्चा राष्ट्रवाद है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। कोरोना वायरस के खतरे से बचने के लिए जरूर बरते ये 7 सावधानियां। मॉनसून के आ जाने से मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। इस बदलते मौसम में अब हमें कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। वैसे बरसात के मौसम में हर साल वायरल बुखार, खांसी, जुकाम, फ्लू जैसी मौसमी बीमारियों का खतरा तो होता रहता है, लेकिन ये सारे लक्षण कोरोना वायरस के भी हैं। ऐसे में कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें पूरी तरह से सावधान रहना होगा, क्योंकि अभी तक इस घातक वायरस से बचने के लिए कोई दवा नहीं बनाई गई है। इसलिए ये सावधानियां ही आपको कोरोना वायरस से बचा सकती है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पिए काढ़ा। कोरोना से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि दिन भर में 2 से 3 बार काढ़े का सेवन करें। आप घर में आसानी से काढ़ा बना सकते हैं। कई शोधों में इस बात का दावा किया गया है कि काढ़े का सेवन करने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। हाथ धोने की आदत डालें। कोरोना वायरस से बचने के लिए हाथ धोना ही सबसे कारगर तरीका है। कई लोगों ने हाथ धोने की आदत को फालतू मान लिया है, लेकिन ये सबसे बढ़िया तरीका है। अगर आप पूरे दिन घर में रहते हैं तो दिन भर हाथ धोने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी खाना खाने से पहले, छींकने और खांसने के बाद जरूर हाथ धोएं। गुनगुना पानी पिए। गुनगुना पानी पीने से डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होता है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत रहेगा तो आपको कोई भी वायरस आसानी से अपनी चपेट में नहीं ले सकता है। इसलिए इस समय प्रयास करें कि गुनगुने पानी का सेवन किया जाए। मास्क पहने। कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनना जरूरी है। कई शोधों में इस बात का दावा किया गया है कि मास्क पहनने से कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सकता है। इस समय मास्क पहनना ना भूलें। मुंह, आंख और नाक को हाथ से ना छुएं। अभी तक किसी मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस मानव शरीर में 3 अंगों के माध्यम से प्रवेश कर सकता है: मुंह, आंख और नाक। इनमें से सबसे ज्यादा संभावना नाक के द्वारा प्रवेश करने का होता है। ऐसे में बेहतर होगा कि मुंह, आंख और नाक को हाथ से छूने से बचें। हैंड सैनिटाइजर हमेशा अपने साथ रखें। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए हमेशा अपने साथ एक सैनिटाइजर का पाउच या बोतल रखें। अगर आप किसी भी सार्वजनिक जगह से जैसे ही आप पर्सनल स्पेस में आते हैं तो सैनिटाइजर से अपने हाथ को अच्छी तरह से साफ कर लें। जरूरी हो तो तभी यात्रा करें। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए यात्रा करने से बचें। अगर कुछ समय तक ट्रेन और प्लेन से लंबा सफर ना करें तो अच्छा ही है। अगर आपको किसी जरूरी काम से सफर करना ही पड़ रहा है तो अपनी सुरक्षा के पूरे इंतजाम देख लें। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे।
कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। किसी दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। सजे से आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे